So hi friends, hope you're doing great. Keeping safe distances, keep yourself and your family safe. I pray to God that you all remain safe, your families are safe and sound during difficult times. So on my website, I have launched a lot of material on principles of banking. मैंने बहुत सारे I've added also question answers on Finacle, and I'll be adding more videos on trade finance. मैंने एक हिंदी का भी एक मॉड्यूल आप लोगों की डिमांड से डाला था बिकॉज आई गॉट अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड स्टिल आई एम गेटिंग लॉट ऑफ ह्यूज रिस्पॉन्सेज एंड बहुत सारे फीडबैक्स, बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स एंड people are happy to use my website for their financial practice. So जो already those who are into banking and those who are going to join the banking, it will be very useful for all of them. And I would request that it's not about Finacle also. I have added a lot of videos on sales and selling techniques also, because nowadays banking is all about sales and selling techniques. So I have added a lot of personal inputs into that, lot of nice material, nice videos on that, and I'll be adding few more by the weekend. So this Sunday onwards, I think you'll be getting a lot of videos on sales and selling techniques. And I've also added a lot of topics and principles of banking. Then I'm going to start. I've added a lot of material on digital banking. I'll be starting that module. Maybe it is inside the principles of banking, or I'll keep a separate module on that. Then I'll be working on wealth management, right? And risk profiling, risk assessment. That will be for later on purpose. That will take time, but you can focus on principles of banking. मैंने बहुत सारे I've added a lot of topics into that. एंड हिंदी का फिनिकल का हिंदी वर्जन भी और इंग्लिश वर्जन भी, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. सो आई थैंक ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट. आप सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपका रिस्पांस ही मुझे जो है आगे जाने के लिए प्रेरित करता है. एंड आई वांट टू शेयर माय बेस्ट एंड मैक्सिमम विद ऑल ऑफ यू, सो दैट you also do well in your life professionally and you are secured financially, personally. So in present scenario, because I have been training for 8 to 9 years, so I know what are the requirements of present day bankers, and those who are preparing for exams, they'll be finding modules on principles of banking, digital banking, very useful besides financial operation part. So this website is useful for both the participants, those who are into sales or either into operations, right? सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कोलीग्स, उनके साथ आप शेयर करिए. एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ट्रेमेंडस. इट इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन जो आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला है. बहुत से लोगों ने, आई थिंक आई हैव गॉट thousands those who have subscribed to my website channels, and they are making use of it, they are making best use of it. For that, I think this is a very unique effort, I think, in the banking industry to have this financial live videos and various topics of banking and all that, right? So friends, do share it with your friends and colleagues. Today we shall discuss, I'll just give you a brief here. YouTube, I am confining myself to the basics. So you can keep watching this YouTube channel also, where I explain basics. Then on my website, you'll find live videos. So first you can see the videos, you can make notes here, then you can practice and you can see how I open accounts in a live Finacle software. The basics remain the same, slightly customization thoda bahut may be different from bank to bank. So here I'll explain both the things here, how to open a fixed deposit account or recurring deposit account. Command is the same, HOAACTD, right? Then click on go, you type the menu option on the right hand side of your screen. So you'll be seeing that in my live videos in my Finacle module on my website. So these you'll have to type HOAACTD. एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप नोट्स बनाते चले जाइए, सो दैट व्हेन यू सी माय लाइव वीडियोस आल्सो आफ्टर दिस यूट्यूब चैनल, तो उसमें भी आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा. क्लिक ऑन गो, देन यू गेट अ स्क्रीन. अकाउंट ओपनिंग, टर्म डिपॉजिट क्राइटेरिया screen appears here, right? So this is the screenshot I have taken that will appear on your
laptop or mobile or whatever you're using, you can see function is O automatically. As soon as I typed HOAACTD, automatically open function appears because I'm opening. That is for opening of that menu option is for opening of term deposit. Then type the KIF ID for whom you are opening. He should be the primary account holder, right? Then choose the scheme code, which variant of fixed deposit a customer wants to open, whether it is quarterly interest payment, monthly interest payment, or compounding fixed deposit, right? So choose the scheme code accordingly. That will be customized as per your bank's requirement. तो आपका when you'll go for searcher, तो वो only that वो वही आपको दिखाएगा जो आपके बैंक में वो वेरिएंट आपके होंगे, right? So you enter the QF ID, the mandatory for opening of account. Scheme code आप डालेंगे, right? And click on go again. Then this screen will appear here. So you can choose here, right? So what is the INR? Click searcher and scheme code, fill the click submit, right? तो आपने जब आप सर्चर पे जाएंगे आपने कुछ नहीं करना है, केवल सबमिट करना है. सबमिट के बाद आपके पास नीचे देखिए बहुत सारे स्कीम्स कोड आ जाएंगे. ये ट्रेनिंग सर्वर है तो इसमें बहुत सारे हमने ऐड किए हुए फॉर वेरियस बैंक्स एंड ऑल दैट. अदरवाइज इन योर बैंक इट विल वेरी कस्टमाइज एंड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक. तो आप स्कीम कोड चूज करेंगे उसमें से, राइट? A list of scheme codes is displayed. Select the appropriate one by clicking the hyperlink. Left hand side में आप देखेंगे जैसे ही कर्सर आप ले जाएंगे तो it will be hand will appear. That means it is a hyperlink. Click on that. Automatically that scheme code will be chosen in there. Then you have to visit these tabs, general tabs. So mode of operations, right? And TDR, term deposit receipt printing will automatically appear. हमने देखा था सेविंग्स और करंट में. सेविंग्स में इट अपीयर्स पासबुक एंड करंट में इट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. देन इंटरेस्ट डिटेल्स, इस टैब में हम लोग कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है. टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, यू जस्ट हैव टू सी दैट. स्कीम कोड, राइट? स्कीम में आपने नॉमिनेशन है कि नहीं है, इन केस इफ इट इज देयर. देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट. Then we click on flow details. Flow details में हमें वो बताएगा कि कैसे कैसे हर क्वार्टर में कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा, how much will be the interest pay in, how much will be the principal pay in, how will be the total payout at the end of the closure of the fixed deposit. अगर नॉमिनेशन yes है स्कीम कोड में तो आप नॉमिनेशन टैब विजिट करेंगे. देन रिलेटेड पार्टी टैब्स आपने विजिट करना ही करना है, मैंडेटरी है, चाहे वो जॉइंट अकाउंट है या नहीं है. तो पहला जो रिलेटेड पार्टी टैब्स आता है वो ओरिजिनल कस्टमर का आता है. अगर आपने कोई जॉइंट अकाउंट खोलना है तो उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे मेरे लाइव वीडियोस में वेबसाइट में देयर इज ऐड टैब. मैंने आपको वहां दिखाया है. जैसे ही आप ऐड करोगे सेम स्क्रीन विल अपीयर विदाउट एनी फील्ड्स बीइंग फिल्ड अप. आप KIF ID टाइप करेंगे तो जो भी हमने CRM में KIF ID क्रिएट करने में जो भी डेटा डाला था वो ऑटोमेटिकली उसमें फिलअप हो जाएगा. And related party tab has to be visited. तो मेकर और चेकर दोनों ने ही ये सारे टैब्स विजिट करने. यूजर मस्ट विजिट द टैब्स कंपल्सरीली. ये आपने विजिट करने ही करने, अदरवाइज वो एंड में आपसे कहेगा और वो आपसे कहेगा ये आपने टैब विजिट नहीं करें तो फिर आप वहां जाकर हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे, वो आपको फिर करना पड़ेगा. सो एक वो है प्रैक्टिस. आप जैसे आप बना लेंगे आपने विजिट करना है तो विजिट करना ही है, राइट? देन मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर जॉइंट है तो आइदर सर्वाइवर जॉइंटली वट एवर इट इज. अगर सिंगल अकाउंट है तो सिंगल अकाउंट ओनली. सेल्फ तो आपको सेल्फ चूज करना है. इंटरेस्ट टैक्स में आपने कुछ नहीं करना है, केवल वो दिखाएगा आपको, डिटेल्स दिखाएगा कब कब इंटरेस्ट उसमें लगेगा, कब कब क्रेडिट होगा और मैच्योरिटी अमाउंट कितना बनेगा. तो आपने वो खाली विजिट करना. यू कैन सी हियर, यू कैन सी फर्स्ट टैब इज हियर जनरल, राइट? तो आप लाइव मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सब मैंने लाइव करके दिखाया हुआ है वहां. इंटरेस्ट टैक्स टैब, राइट? तो यहाँ देखिए अकाउंट ओपनिंग डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी जिस दिन आप ये कर रहे हो, राइट? देन आपने कुछ नहीं करना है. इंटरेस्ट टैक्स स्कीम टैब में आपने जाके वहां देखना है नॉमिनेशन वाई या नो है, कितने अमाउंट की FD है, कितने पीरियड की FD है, या RD कितनी इंस्टॉलमेंट है, कितने पीरियड की RD है.
राइट। ट्रांसफर इन आपने बिल्कुल नहीं जाना इसमें, ये अगर इसमें घुस गए तो निकलने नहीं देगा। दिस इज फॉर जब एफडी कहीं और ब्रांच से ट्रांसफर होकर आती है। फ्लो डिटेल्स आपने विजिट करना है। देन रिलेटेड पार्टी डिटेल्स, नॉमिनेशन अगर टैब है, यस है तो आपने विजिट करना, अदरवाइज जैसे ही आप इस पर टिक करोगे वो कहेगा नॉमिनेशन टैब इज नो, तो आपको वहां कुछ एंटर करने नहीं देगा। देन लास्ट इज रिलेटेड पार्टी डिटेल्स, वो आपने ऐड करना ही करना है, राइट। एंड इनफैंग जो है वो एक लैंग्वेज है जो इन्फोसिस यूज करता है इन द वर्किंग ऑफ द फिनिकल। तो इनफैंग इन्फ तो इन्फोसिस हो गया, एंड इंग्लिश तो इन्फोसिस की इंग्लिश दैट इज कॉल्ड इनफैंग लैंग्वेज, राइट। तो हमने यही चूज करना है। अकाउंट स्टेटमेंट में देखिए डिपॉजिट रिसीट आ रहा है, तो हम HDRP में जाकर कमांड से बाद में फिक्स डिपॉजिट को प्रिंटिंग हम करेंगे, राइट। Usually most of the fields would be populated as per the parameters set scheme code। जैसे ही स्कीम कोड आप चूज करोगे, जो भी स्कीम आप चूज करोगे, पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली जब वो सॉफ्टवेयर बनाया गया था वही पैरामीटर्स फिलअप किए गए हैं। सर्टेन डेटा वुड बी पॉपुलेटेड फ्रॉम द किफ ऑफ द कस्टमर। तो किफ में जो भी हमने डेटा डाला है, लाइक एड्रेसेस, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ऑल दैट विल बी पॉपुलेटेड अकॉर्डिंगली। एड्रेस वही आएगा। तो अगर किफ में कोई मिस्टेक कर रखी है और वो अप्रूव कर दिया है तो आपको यहाँ वो एरर देगा ही देगा। फिर आपको किफ एडिट में जाके उसको मॉडिफाई करना होगा। देन पैगिंग, नाउ पैगिंग हैज टू बी यस इन दिस, बिकॉज जिस दिन हमें फिक्स डिपॉजिट हम बनाते हैं, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस दिन उस बैंक का उस पीरियड के लिए है वो हमेशा ही रहेगा जब तक वो फिक्स डिपॉजिट बैंक में रहेगी। तो पैगिंग फ्रीक्वेंसी तो आपने कुछ नहीं करना है, पैगिंग यस, राइट। इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट, तो अगर कस्टमर कहता है मुझे मंथली इंटरेस्ट चाहिए, क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट किस अकाउंट में जाएगा, तो आपका उसका जो भी ऑपरेटिव अकाउंट है उसको आप वहां एंटर करेंगे। और वैसे भी एंटर करेंगे क्योंकि मेच्योरिटी पे भी वो प्रोसीड जो है उसी अकाउंट में ही जाएगी। स्कीम टैब में जाके आप सिस्टम डिस्प्लेज द स्कीम टैब डिटेल्स, उसमें क्या क्या आएगा, हियर यू कैन सी हियर पे इंटरेस्ट, यस इंटरेस्ट हम पे करेंगे, राइट। प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट अगर किसी को देना है, ओनली देन यू कैन चेंज इट हियर, राइट। कोई सीनियर सिटीजन है या कोई अलग से परमिशन ली गई है, राइट। तो दिस इज फॉर दैट। एंड चैनल प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट, अगर वो नेट बैंकिंग से एफडी बनाता है तो अगर कोई बैंक को दे वांट टू गिव एनी बेनिफिट तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली हमने ऐड करना होगा। पैगिंग फ्रीक्वेंसी में हमने जितने अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट है वही हमने यहाँ डालनी है, रिमेंबर दिस, राइट। तो अकाउंट पैक्ड यस मींस वो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट उस फिक्स डिपॉजिट पे जब तक वो रहेगी मेच्योरिटी तक वही होगा। क्योंकि ये हो सकता है आज आपने फिक्स डिपॉजिट बनवाई, आज मेरे को 8% मिल रहा है, कल को बैंक ने उसमें 1% बढ़ा दिया तो मुझे 9 नहीं मिलेगा जब तक मेरी फिक्स डिपॉजिट 2 साल की है, और 2 साल तक मुझे 8% ही मिलेगा। तो पैगिंग इज यस मींस पैक्ड है, उस कोड से उस इंटरेस्ट रेट से पैक्ड है मींस बांध के रखा हुआ है। पैगिंग फ्रीक्वेंसी वही जब तक वो फिक्स डिपॉजिट है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो हमने, तो ये 3 साल की फिक्स डिपॉजिट हम बना रहे हैं तो हमने इसको 36 मंथ्स यहाँ किया हुआ है, राइट। इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट देखिए पॉइंट नंबर 9 पे यू कैन फाइंड हियर। तो अगर वो क्वार्टरली इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट चाहता है तो वी कैन राइट दैट अकाउंट नंबर हियर, और अदरवाइज ऑल्सो विल बी राइटिंग हियर इन केस if it is compounded fixed deposit then the amount will be credited in this operative account only, right। and tax category is very important। अगर उसने फॉर्म 16 फॉर्म 15G या 15H दिया है, और वो 15G 15H में आपको बता दूं वो कस्टमर इसलिए देता है, वो कहता है मेरी जो इनकम है साल की वो टैक्सेबल नहीं है, तो इसलिए मेरी एफडी में अगर 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट बनता है और सीनियर सिटीजन नहीं है, या वो सीनियर सिटीजन है 50,000 से ज्यादा एक साल में इंटरेस्ट बनता है, तो बैंक जो है 10% TDS काटता है अगर पैन नंबर है, और पैन नंबर नहीं है 20% काटता है। तो वो कस्टमर ये कहता है भाई मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप ये TDS मत काटिए, तो वो हमने टैक्स कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ डालना है, TDS डिडक्टेड एट सोर्स, यस और नो हमने करना है, ठीक है। देन डिपॉजिट पीरियड, अब हम स्कीम कोड में जाएंगे, कितने अमाउंट की डिपॉजिट पीरियड है, 24 महीने की है, 36 महीने की है, 12 महीने की है, या रिकरिंग डिपॉजिट भी हम इंस्टॉलमेंट हम डाल सकते हैं।
अगर आरडी हम खोल रहे हैं। फिर डिपॉजिट और इंस्टॉलमेंट अमाउंट, डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट, आरडी है तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जितने अमाउंट 5,000 10,000 की आरडी है या फिक्स डिपॉजिट 1 लाख की है 2 लाख की लमसम अमाउंट हम डालेंगे। तो जब हम स्कीम कोड चूज करेंगे तो हम फिर एफडी का चूज करेंगे तो वो एफडी की ही अमाउंट लेगा। आरडी का हम स्कीम कोड चूज करेंगे तो आरडी की इंस्टॉलमेंट वो ले लेगा। देन स्कीम कोड में हम रीपेमेंट अकाउंट आईडी मींस जब वो एफडी पूरी हो जाएगी वो किस अकाउंट में जाएगी, वो इस रीपेमेंट अकाउंट आईडी में जाएगी। तो जनरली वही होता है जिसमें इंटरेस्ट जाता है। स्कीम कोड में नॉमिनेशन अगर यस है तो हम नॉमिनेशन टाइप विजिट करेंगे, नहीं है तो हम विजिट करने की जरूरत नहीं है। You can see here it is, amount, तो here deposit oblique installment amount, here it is। तो हम एफडी बना रहे हैं 25,000 की, 25,000 राइट। और वैल्यू डेट आज से ही बनेगी, कितने पीरियड की, 36 मंथ्स या 3 साल की हम फिक्स डिपॉजिट हम बना रहे हैं राइट। नॉमिनेशन देखिए here it is right hand side bottom of the screen you can see here nomination, if it is yes we have to visit the nomination tab, otherwise अगर no है तो no, and there are other options, you want to print the nominee's name on the fixed deposit, yes, if you don't want तो no कर दीजिए। तो आपने कस्टमर की मैंडेट आपने अकॉर्डिंगली इसमें डालना है। then flow details, click on flow details, you have to visit this right। तो वो इसमें कुछ आपने चेंज नहीं करना है, ये खाली विजिट करना होता है। ये बताएगा कि अगर कितना क्वार्टरली इंटरेस्ट बनेगा, कितना अकाउंट में जाएगा और कैसे कितने मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा, वो सारा डेट वाइज पूरा शेड्यूल आ जाता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट फ्लो डिटेल्स। फिर अगर नॉमिनी यस है तो नॉमिनी का अगर अकाउंट होल्डर रखिए आईडी आप डाल देंगे, एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिकली फिलअप कर लेगा, सिटी कंट्री इंडिया एवरीथिंग। नहीं है तो आपने मैन्युअली यू हैव टू एंटर द डिटेल्स ऑफ द नॉमिनी, हिज नेम, एड्रेस, सिटी, कंट्री एंड पिन कोड इज मैंडेटरी। रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज हिज रिलेशनशिप विद द अकाउंट होल्डर, वो भी आपने यहाँ फिलअप करना होता है। तो वो कोड कई सारे, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन हालांकि अब ये डन अवे कई बैंक्स में ये हटा दिया गया है, बिकॉज अदरवाइज मैन्युअली हम लोग पहले क्या करते थे, वी यूज्ड टू एंटर द नॉमिनीज डिटेल इन अ रजिस्टर और एक सीरियल नंबर हम देते थे, तो वो सीरियल नंबर हम लोग यहाँ डालते थे। नाउ इट हैज बीन डन अवे विद, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर देता चला जाएगा जैसे ही हम सिस्टम में एंट्री करते चले जाएंगे। डिपॉजिट पीरियड कितने साल की फिक्स डिपॉजिट है या आरडी है, अमाउंट इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट नॉमिनेशन यस और नो राइट। सो हियर यू कैन सी हियर फ्लो डिटेल्स, देखिए हियर यू कैन सी, तो आई इंटरेस्ट इन फ्लो, आई मींस इंटरेस्ट इन फ्लो, प्रिंसिपल पीआई प्रिंसिपल इनफ्लो मींस 25,000 की फिक्स डिपॉजिट बनाई, फिर अगले क्वार्टर में इतना इंटरेस्ट, अगले क्वार्टर में इतना इंटरेस्ट, दिस इज ऑल डिटेल्स कम हियर। एंड व्हाट विल आप और देखिए 1 to 9 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप एक एक करके 1 से 5 तक के 5 क्वार्टर्स के ये दे दिए, फिर अगली टैब में चली जाइए, फिर 4 क्वार्टर के और दे देगा। तो सिमिलरली वो 9 क्वार्टर्स के रिकॉर्ड्स वो आपको दे देगा राइट। सो वो आप यहाँ जाके कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, आपने कुछ चेंजेस नहीं करने हैं राइट, डोंट टू डू एनी चेंजेस है, दिस इज ऑल कस्टमाइज। तो इंटरेस्ट इनफ्लो, इंटरेस्ट आउटफ्लो, अगर वो क्वार्टरली इंटरेस्ट ले रहा है, मंथली इंटरेस्ट ले रहा है तो आउटफ्लो हो जाएगा, और इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल में ऐड होता जा रहा है लाइक कंपाउंडिंग फिक्स डिपॉजिट और री इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट, तो वो इंटरेस्ट इनफ्लो होता है। और आप एक्सप्लोर करके उसकी डिटेल भी देख सकते हैं कि कितना टीडीएस लगेगा, कितना नहीं लगेगा। सिस्टम ओपन्स अ विंडो इन विच इंटरेस्ट रेट अप्लाइड ऑन द टीडी विल बी डिस्प्लेड। तो जैसे आप एक्सप्लोर पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्लोर का बटन है, आप वहां क्लिक करोगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट विल बी डिस्प्लेड देयर। Flow codes will be generated automatically by the system as per the term deposit scheme code selected. Flow codes for monthly interest term deposit. So these are all given there. So this is you can see here. जैसे ही आपने explore button पर click किया, right? So here you can see here. This is the right hand side here. It is the explore tab here. As soon as you'll click here, दिस विंडो विल अपीयर। ये मैंने अपने वेबसाइट में लाइव वीडियोस में आप सबको ये मैंने एग्जांपल्स आपको शो कर रखा है, तो थोड़ा सा और भी इजी हो जाएगा और बहुत ही कन्वीनियंट लगेगा। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 7.25% इट इज शोन हियर।
तो एक्सप्लोड करके वो बता देगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, राइट। फ्लो कोड्स विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज पर टीडी स्कीम कोड सेलेक्टेड, राइट। तो वो आपने कुछ चेंज नहीं करना है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करेगा। वो कस्टमाइज ऐसा है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्लो कोड्स वही आ जाएंगे। तो ये देखिए, दिस इज इंटरेस्ट आउटफ्लो, मीन्स वो कस्टमर जो है इंटरेस्ट हर क्वार्टर ले रहा है, इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स 1 लाख ओनली। यू कैन सी हियर। बैक स्लाइड में हमने देखा था इंटरेस्ट ऐड होता चला जा रहा था। हेयर इट इज द रिमेन्स सेम, इंटरेस्ट इज बीइंग क्रेडिटेड इन द कस्टमर्स अकाउंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, राइट। Flow codes for quarterly interest, right? So you can see here interest outflow, right? So amount 75,000 की fixed deposit पे वही चली आ रही है, right? Flow codes for recurring deposit, you can see here RD है, अगर आपने खोली हुई है तो आप हर महीने देखिए normal inflow, that is installment, NI means normal inflow, right? तो देखिए हर महीने वो 5,000 रुपए आरडी में आते चले जा रहे हैं, और कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो यहाँ सब कैलकुलेट होता चला जा रहा है, और कितना अमाउंट बनेगा वो भी आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता लग जाएगा, राइट। सो एनआई मीन्स नॉर्मल इनफ्लो, मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट में वो एक बार ही आएगा, हेयर इट विल बी मेनी टाइम्स, राइट। रिन्यूअल एंड क्लोजर टैब, ये आपने जरूर विजिट करना है। हालांकि इसमें ऑटो रिन्यूअल ऑटोमेटिकली कस्टमाइज्ड होता है, कि कस्टमर नहीं आता तो बैंक उसको ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देता है। एंड इफ कस्टमर रिक्वेस्ट कि भाई मेरी एफडी कैंसिल करके मेरे अकाउंट में डाल दी जाए, तो देन ऑल्सो इट कैन बी एडेड देयर, राइट। सो दिस इज द स्क्रीन, दिस इज फॉर रिन्यूअल एंड क्लोजर, राइट। देखिए हियर इट इज इंटरेस्ट इनफ्लो, मींस इंटरेस्ट इज बीइंग क्रेडिटेड इनटू द प्रिंसिपल अमाउंट। That is a compounding effect on the principal. That is reinvestment of compounded fixed deposit. Means customer उसको क्वार्टरली मंथली इंटरेस्ट इसमें नहीं ले रहा है, उसको एफडी के मेच्योरिटी पे पूरा पैसा विद इंटरेस्ट कंपाउंडेड होके मिलेगा, तो यह रिटर्न उसकी थोड़ी ज्यादा होगी, राइट। Renewal tab contains instructions taken by the system at the time of TD renewal. TDs are set at auto renewal by default. तो और चाहते हैं आप उसको 2 बार 3 बार ऑटो रिन्यू कर सकते हैं, अगर कस्टमर कहता है भाई 2 बार बढ़ा दीजिएगा, तो जनरली भी नॉर्मली बाय प्रैक्टिस पे हम उसको ऑटो रिन्यूअल पे ही रहने देते हैं। एंड इफ कस्टमर डिजायर्स टू चेंज द ऑटो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, देन द सेम कैन बी कैप्चर्ड इन दिस टैब। सो यू कैन सी हियर, राइट। रिन्यूअल क्लोजर्स देखिए, ऑटो क्लोजर नो, बंद नहीं करना है, तो ड्यू डेट पे वो बंद नहीं होगा। ऑटो रिन्यूअल अनलिमिटेड, यार रिन्यूअल पीरियड अगर फर्दर रिन्यू होती तो, क्योंकि पहले भी 36 महीने की बनी थी, आगे भी 36 महीने के लिए ऑटो रिन्यू हो जाएगी, राइट। और जो भी स्कीम है जिसमें हमने खोला था वो वही दिखाएगा। इंटरेस्ट टेबल जो भी है वो उसी से टैप पैक्ड रहेगा, राइट। और यहाँ एक ऑप्शन है बहुत बढ़िया है, आपको मैं समझा दूंगा। अगर कस्टमर चाहता है कि भाई खाली मेरा प्रिंसिपल ही रिन्यू हो या मेरा इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग एफडी है तो इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा कंपाउंडिंग के बाद, और जो प्रिंसिपल है वो मुझे फर्दर रिन्यू हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारे ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस आते हैं, जो मैंने अपनी वेबसाइट में आपको लाइव आपको करके दिखाया है, कि मेच्योरिटी अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट ओनली या इंटरेस्ट अमाउंट ओनली, आप जो भी कस्टमर चाहता है वो रिन्यू कर सकता है। तो हम मैंडेट उससे ले सकते हैं सर, जब ड्यू होगी तो आप उसको रिन्यू कराना चाहेंगे तो पूरा कराना चाहेंगे, खाली प्रिंसिपल का कराना चाहेंगे या खाली इंटरेस्ट का कराना चाहेंगे, तो वो कस्टमर की अपनी चॉइस है, राइट। एंड दिस हैज टू बी विजिटेड। रिलेटेड पार्टी टैब्स ये आपने विजिट करना ही है, चाहे वो सिंगल अकाउंट हो चाहे वो जॉइंट अकाउंट हो। जॉइंट है तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड टैब पे आप क्लिक करेंगे, ये मैंने अपने लाइव वीडियोस अपनी वेबसाइट में दिखाया हुआ, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब लाइव आप देखेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग और बेटर बनेगी। और आप उसमें जॉइंट अकाउंट उसकी रिलेशनशिप क्या है वो ऐड कर सकते हैं। अगर कस्टमर है तो किफायती डाल दीजिए, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी। अदरवाइज मैन्युअली आपने ऐड करना होगा, राइट।
So this is related party tabs. You can see your left hand side here. तो फर्स्ट जो पेज आएगा दैट विल बी फॉर द ओरिजिनल, जिसका हमने अकाउंट खोला है वो ऑटोमेटिकली, या हमने कुछ नहीं करना है, राइट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐड हेयर, हम रिलेशनशिप कोड पे जाएंगे, ब्रदर है, सिस्टर है, पेरेंट है, फादर है, मदर है, या वट एवर इट इज, वो कोड हम डालेंगे। फिर उसका मिस्टर मिसेस जो भी है, रिलेशनशिप टाइप क्या है, राइट। फिर हम उसका स्टेटमेंट फ्रिक्वेंसी कुछ चेंज नहीं करेंगे। देन राइट वी कैन टाइप द क्यूफ आई डी हियर। क्यूफ आई डी नहीं है तो हम टाइटल और नाम और एड्रेस सारा यहाँ ऑटोमेटिकली हमने भरना पड़ेगा। नॉमिनेशन में एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गया, नॉमिनेशन में हेयर आप एक परसेंटेज आता है वहां, तो वहां हमने बाय डिफॉल्ट 100 ही लिखना है इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। वो इसलिए कि कुछ कंट्रीज में वहां एक से ज्यादा नॉमिनेशंस अलाउड है डिपॉजिट अकाउंट में। हमारे कंट्री में ओनली 1 नॉमिनेशन इज अलाउड इन अ डिपॉजिट अकाउंट, चाहे वो जॉइंट हो, 3 जने हो, 4 जने हो, 1 जना हो, एफडी हो, करंट हो, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट हो, सेविंग्स अकाउंट हो, ओनली 1 नॉमिनेशंस। तो यहाँ हमने 100% ही लिखना है, मीन्स क्योंकि एक ही नॉमिनी है तो पूरा पैसा उसको ही मिलेगा। ये मैंने अपने वेबसाइट पे आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप वाइज बेसिस। तो जिन लोग अभी नहीं कर पाए, क्योंकि जो मैंने डिस्काउंट्स दिए थे वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गए सारे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो अर्ली बर्ड्स थे, तो आप उसका फायदा उठाइए, वेबसाइट पे जाइए, और आप आई थिंक आपको बहुत अच्छा एक कंफर्ट लेवल आएगा। जब आप ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, अभी ज्वाइन किया या आगे करने जाएंगे, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद चीज ये रहेगा अगर आप फिनिकल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर यूजिंग दिस फिनिकल एज ए बैंक सॉफ्टवेयर। और फाइनली जब आप सबमिट कर देंगे, सारे टैब्स विजिट करके एक अकाउंट नंबर आ जाएगा, वो आप नोट कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग, फिर इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए कमांड है HOAACVTD। अगर मेकर ने ये अकाउंट ओपन कर दिया और वेरिफिकेशन देने से पहले उसको लगा यार कोई चीज मैंने गलत एंटर कर दी है, या कोई चीज मैं एंटर करना भूल गया, या कस्टमर कुछ ऐसा मैंडेट मिला कि भाई ये ठीक कर दो, तो मेकर भी बिफोर वेरिफिकेशन उसको मॉडिफाई कर सकता है। उसकी कमांड है HOAACMTD, M फॉर मॉडिफिकेशंस। तो वो मेकर विदाउट बिफोर वेरिफिकेशन उसको मॉडिफाई कर सकता है। पहले क्या होता था, वेरीफाई होता था, फिर मॉडिफाई होता था, फिर वेरीफाई होता था। तो इस लेटेस्ट वर्जन में ये कस्टमाइज कर दिया गया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द वेरियस बैंक्स। और वेरीफाई करना है HOAACVTD, वेरीफाई होगा आफ्टर मॉडिफिकेशंस और आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट। और अकाउंट वेरीफाई हो गया, कस्टमर बाद में आता है कि भाई मेरा नॉमिनी ऐड कर दीजिए, इसमें जॉइंट अकाउंट कर दीजिए या नॉमिनी ऐड कर दीजिए, तो HACMTD इज द कमांड। उसके लिए मैं आपको और वीडियोस में आप बहुत सारे यूट्यूब पर डालूंगा, तो ये सब आपको क्लियर होगा। एंड डू ज्वाइन माय वेबसाइट, इट्स वेरी इजी, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। मैंने कोई नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे इसको किया है, सो दैट मेरा जो यंग जनरेशन है वो मैक्सिमम फायदा उठाए, उसको मैं कंफर्ट लेवल दे सकूं। होप यू आर एंजॉयिंग। So please thank you all of you for subscribing to my YouTube channels, and I think more than 95,000 people have seen my videos. तो 95,000 से ज़्यादा लोग मेरा वीडियोस देख चुके हैं, तो उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइबर्स को और भी तहे दिल से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रेंड्स को आप रेफर करिए, शेयर माई वीडियोस जितना, और कमेंट जरूर करिए प्लीज़। चाहे आप यूट्यूब पे हैं, वेबसाइट पे हैं, प्लीज जरूर कमेंट करिए, राइट। सो कोई सजेशंस आप देना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपको वेबसाइट पे आपको लग रहा है सर ये इसमें आप एक वीडियो डाल दीजिए, मैं आप जब भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी आई एश्योर यू, अगर वो टॉपिक नहीं है, कवर्ड नहीं और आई फील कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपकी जरूर रिक्वेस्ट को मैं अपना ऑर्डर मानूंगा और उसको मैं वेबसाइट पे ऐड करूंगा। यूट्यूब पे भी आप अपना जो भी आपको कोई सजेशंस है, कोई फीडबैक है, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशंस, आई एम मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए ही है। तो आप नहीं सजेशंस देंगे तो आपको ही फायदा होगा। मैं तो एक जरिया हूं, आई एम ए ब्रिज बिटवीन द नॉलेज एंड यू। सो जितनी नॉलेज आप बढ़ाइए, इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू।
सो वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। जरूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को रेफर करिए, शेयर एज मच एज पॉसिबल। तो ये वेबसाइट एक रेवोल्यूशन बन जाए ऑल ओवर इंडिया। एंड बहुत ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव सब्सक्राइब टू माय वेबसाइट एज वेल एज यूट्यूब चैनल। And gradually I'll be adding lot more topics. I think you will have enough of topics. तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई टीचिंग प्लेटफॉर्म, इट इज जस्ट अ practical platform to share whatever present bankers are facing problems in either sales and selling techniques. तो अगेन ये खाली फिनेकल की वेबसाइट नहीं है, इसमें बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो सेल्स में है, सेल्स एंड सेलिंग टेक्निक्स आई थिंक आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, तो आपको जरूर फायदा होगा। जो भी सेल्स सेलिंग टेक्निक्स में आपको बताता हूँ उसको फॉलो करिए, जॉट डाउन करिए। आई एश्योर यू आपको सक्सेस मिलेगा। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स, suggestions and anything either on my website or on YouTube channels. Thank you so much guys. Please keep yourself safe. अपनी फैमिली को सेफ रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। God bless you all. Thank you.